ब्रीदिंग बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफ्यूजन। एक बार एयर पहुंच गई एल्वियोली में, उसके बाद क्या होना है, एयर का डिफ्यूजन होना है। कैसे होना है, पार्शियल डिफ्यूजन होना प्रेशर है के बेसिस क्योंकि वो थिन है ना। हम्म, हाँ, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो एयर वहां पर पहुंच गई है वो अब आगे जाएगी, जो ब्लड में पहुंच गई डिफ्यूजन के बाद, अब वो आगे जाएगी। आगे कहाँ, जहां ब्लड जा रहा है। ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट की तरफ। तो यानी कि पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन जाने वाली है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। गैसेस क्यों बोलेंगे, ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन जा रही है, क्योंकि और ये भी तो जब है, ये जब टिश्यूज में पहुंचेगी तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लेके आएगी। तो हम इसको बोलेगी ट्रांसपोर्ट जी ऑफ सर। गैसेस बोल देते हैं। नेक्स्ट सर है कि ठीक है। जब ये जो ऑक्सीजन पहुंचेगी टिश्यूज तक, तो जो डिफ्यूजन होगा, क्यों, क्योंकि टिश्यूज आर द फैक्ट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। whenever they will हाँ have chance to cross that boundary, they will cross, and they are having chance each and every second. Okay, continuously the oxygenated blood is moving across our organs, and in organs, as a result of cellular respiration, the carbon dioxide is being continuously formed, and that's why there is higher partial pressure of carbon dioxide inside the organs, and that's why it is crossing that boundary and crossing the squamous epithelium of the blood endothelium, blood capillaries, and they are joining the blood so that they can be transported back towards the lungs. Okay, what is happening inside the cells, what is happening inside our organ, so that the carbon मेटाबॉलिज्म dioxide is being produced? Actually it is what, it is the utilization of this oxygen, which after, बायोकेमिकल रिएक्शंस। yeah, biochemical reactions, that catabolic reaction which is actually known as respiration, which is actually known as cellular respiration. So that oxygen is being utilized जी in the catabolic breakdown of the glucose, and as a result of which the carbon dioxide is being produced, which is beyond the scope of this chapter because it is fixed in the botany, in the respiration in plant. हाँ So it doesn't mean रेस्पिरेशन that respiration in animal doesn't exist. Actually, we are here talking only about the breathing and exchange and transport of gases, diffusion of gases, because there is a huge and complex respiratory system to facilitate breathing and exchange of gas and transport of gas. Okay, and the cellular respiration is common along with the plant, similarly in the plant. Okay, but in case of यस plant सर। there is no respiratory system. That's why in botany we just learn about respiration, cellular respiration, the actual process which utilizes the oxygen and liberates the carbon dioxide. So these are the 5 steps, you can say, of respiration: breathing, diffusion, transport, diffusion, utilization. Breathing, diffusion, transport, diffusion, utilization. जी चलो, तो इसी बात पे पैंक्रियाटिक जूस के जो वो होते हैं कंपोनेंट, वो बताओ। पैंक्रियाटिक जूस के सर हम्म ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, हम्म और हमारे पे अमाइलेज, माल्टेज हम्म और न्यूक्लियस। amylase, maltase, nucleus. क्या बात है, good. Now we are moving towards the mechanism of breathing, which we actually already discussed, but not in terms of muscular contraction, but in terms of negative जी pressure breathing. ठीक है, अब हम उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने वाले हैं कैसे होता है ये। सर मैंने ना एक पॉइंट करके लिखे हुए हैं ये, अच्छा, तो मैं एक बार बताऊं आपको। बिल्कुल बताओ। तो सर मतलब पहले है हमारे पे फोर पल्मोनरी फोर मूव आउटसाइड टू इनसाइड लंग, यानी कि इंस्पिरेशन का है ये, हम्म इंस्पायरेशन का है। हम्म तो सबसे पहले क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, हम्म फर्स्ट पॉइंट। हाँ तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थॉरिक चेम्बर हम्म एंटीरियो पोस्टीरियरली बढ़ेगी, किसके कॉन्ट्रैक्शन से? डायाफ्राम के। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। हाँ फिर सही। उसके बाद बोला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हाँ लिफ्ट अप द रिब्स हम्म एंड द स्टर्नम। सही सही तो है। इससे क्या होगा, इससे होगा वॉल्यूम बढ़ेगी थॉरिक चेम्बर की, हम्म डोर्सल वेंट्री हमारे सर्कमफेरेंस के हिसाब से। हम्म। तो अब इन दोनों के प्रोसेस से क्या हुआ, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, हम्म। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। ठीक है। दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम, अब वॉल्यूम इंक्रीज हुई, वॉल्यूम से प्रेशर जो है वो नेगेटिवली प्रोपोर्शनल है, वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम्म वॉल्यूम बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हम्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, हम्म। तो जो हवा ऑक्सीजन वो जो एयर होगी वो अंदर चली जाएगी। ठीक है, सही है। सही है सर ये? हाँ सही है, सही। और मैंने एक्सपायरेशन का भी लिखा है सर। हाँ बताओ। अब इसमें क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम। हम्म इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं रिटर्न इंटरकोस्टल मसल वापस आएंगी, हम्म डायाफ्राम एंड स्टर्नम भी वापस आएगा नॉर्मल पोजीशन में अपनी, हम्म रिड्यूस करेगा थॉरिक वॉल्यूम को हम्म और पल्मोनरी वॉल्यूम को। अब इससे क्या होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज हो गई हम्म तो वापस से प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर बढ़ जाएगा वहां पे हम्म अंदर लंग्स के अंदर। हम्म। तो जो अंदर से जो एयर होगी वो बाहर जाएगी, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है। हम्म। हो हाँ गया हाँ, सर? तो एक्सेलेशन हो जाएगा। और सर ये एक पॉइंट और था कि इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पे एब्डोमिनल मसल्स की वजह से होता है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं मतलब जबरदस्ती, जैसे एक्सपायरेशन करते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं फोर्सफुल। ना। हाँ जी, फोर्सफुल वाला, तो वो एब्डोमिनल मसल से हो सकता है, एब्डोमिन मसल से। हाँ, एक्सटर्नल जी सर। इंटरकोस्टल से भी हो सकता है, और एब्डोमिनल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की हेल्प से फोर्स्ड एक्सेलेशन होता है बेटा, फोर्स्ड एक्सेलेशन। आपने वो जी जो लिख सर। रखा है ना बेटा, वो फोर्स्ड एक्सेलेशन के बारे में लिखा होगा कि फोर्स्ड एक्सेलेशन कैसे होता है। हाँ जी फोर्स्ड सर। एक्सेलेशन होता है एब्डोमिनल जी सर। मसल्स एज वेल एज इंटरनल इंटरकोस्टल की वजह से। क्योंकि इंटरनल इंटरकोस्टल को अगर आप और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब केज नॉर्मल से और अंदर को जाएगा, वॉल्यूम उसका हाँ और सर। कम होगा, वॉल्यूम और कम होगा तो प्रेशर और बढ़ेगा। कि टोटल जो ब्रीदिंग होती है, ठीक है, टोटल जी ब्रीदिंग सर। कितनी होती है? अब 12 से 16 टाइम। हाँ, 12 से 16 टाइम होती है एक मिनट में। ठीक है, एक मिनट में 12 जी से सर। 16। और इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर, ठीक है, स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा, इसके जी सर। बाद स्पायरोमीटर या सर ये वाला हाँ रेस्पायरोमीटर जी। के हिसाब से ही ये बताया हुआ है कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज क्या होती हैं और इनको कैसे कैसे मेजर करते हैं। नॉर्मल सांस लो तो टीबी, नॉर्मल के बियॉन्ड इनहेल करो तो आईआरबी, नॉर्मल सांस लो तो टीबी, नॉर्मल के बियॉन्ड एक्सहेल करो तो ईआरवी। ठीक है, नॉर्मल प्लस जो रिजर्व वाला इनहेलेशन है उसको कंबाइन कर दो तो वो हमारी कैपेसिटी आ जाती है आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और जी नॉर्मल एक्सहेल जो आप करते हो उसके साथ आप फोर्सफुल एक्सहेल को जोड़ दो तो आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ जाती है। जी सर। नॉर्मल इनहेल किया 500 ml आया, नॉर्मल एक्सहेल किया 500 ml गया। ठीक है, ठीक। ऐसे इनहेल और एक्सहेल टोटल कितने होने वाले हैं? टोटल होंगे 12 से लेकर 16। ठीक है, जी सर। 12 पंजे 60 या 16 पंजे 80, 6000 से लेकर 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट हम इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल नॉर्मल रेस्पिरेशन, फोर्सफुल नहीं, नॉर्मल और नॉर्मल। फोर्सफुल, ये तो दो वर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। आप ये जी अगर सर। ध्यान रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जी। तो आप देखें कि टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल होगा। इसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये एडिशनल वॉल्यूम है, ये फोर्सफुल लेने वाली वॉल्यूम है, लेने वाली है यानी कि इनहेल करने वाली है, और ये फोर्सफुल एक्सहेल करने वाली वॉल्यूम से ज्यादा होती है, ये भी मैं बता दूं। तो कितना? 2500 से 3000 ml तक ये होगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होगी? इससे कम होती है। कितनी? लगभग आधी। कितना? 1000 से 1100। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जो फोर्सफुली हम एक्सहेल कर सकते हैं, जो एडिशनल एक्सहेल कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सहेल कौन सा होता है? टीबी। लेकिन फोर्सफुल एक्सहेल कर देने के बाद भी जो बच जाए वो आरबी है। फोर्सफुल एक्सहेल करने के बाद भी जो बच जाए वो क्या है? आरबी है। ठीक है, टोटल कितना इनहेल कर सकते हैं? मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हैं? नॉर्मल प्लस फोर्सिबल। टोटल वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट? टोटल वॉल्यूम कहने का हमारा क्या मतलब है? टोटल वॉल्यूम कहने का मतलब है हमारा नॉर्मल प्लस फोर्सिबल। ठीक है, फोर्सिबल कौन सी भाई? एडिशनल वाली। इसके बाद हम बात करें
टोटल वॉल्यूम की अभी मैंने बात की, तो टोटल वॉल्यूम में क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा नॉर्मल प्लस फोर्सफुल। ऐसे ही एक्सपिरेटरी में भी नॉर्मल क्या एक्सेल कर सकते हैं प्लस फोर्सिबल क्या एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन जी सर। एफआरसी जो है वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है। क्या? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी तो रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस वो वॉल्यूम है जो कि हम एडिशनली एक्सेल कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। जो हम अभी सांस लेते हैं तो उसमें नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सेल कर रहे हैं, फोर्स वाला तो कर नहीं रहे। यानी जब हम नॉर्मल एक्सेल कर दे रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इनसाइड आवर लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सेलेशन, उस नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम बचता है, दैट इज नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके, अब दो चीजें हमारे पास बड़ी बड़ी हैं, एक वाइटल कैपेसिटी, एक टोटल लंग कैपेसिटी। मैं ये होती क्या है इसको बताने से पहले इनके बीच का डिफरेंस बता दूं तो ये होती क्या है उसमें आसानी होगी। टोटल लंग कैपेसिटी को मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड है जो कभी न बाहर आता है ना अंदर आता है, अंदर जाता है। ठीक है, वो जब हमने पहली बार सांस ली थी जन्म के बाद, जब हमारे लंग्स पहली बार भरे थे, ठीक है, तभी वो रेजिडुअल वॉल्यूम बना था। उसके बाद से रेजिडुअल वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता रहा जैसे जैसे हमारे लंग्स बढ़ते रहे। और एक्सेलेशन के बेसिस पे हम उसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो ना तो पूरा बाहर आ सकता है, ठीक है, और ना ही आप मेजर करके बता सकते हो कि जो एग्जिस्टिंग है उसमें कितना ऐड हो रहा है। ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी हमारे लंग्स की वो कैपेसिटी है जिसके थ्रू हम बता पाते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हो सकता है लंग्स में। मैक्सिमम बोला नॉर्मल प्लस फोर्सिबल प्लस रेजिडुअल, मैंने मैक्सिमम बोल दिया। ठीक है, इस वाले मैक्सिमम में आर भी इंक्लूडेड है, लेकिन वाइटल कैपेसिटी का जो मैक्सिमम है उसकी डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, that can be inhaled after maximum exhalation or that can be exhaled after maximum inhalation। सांस ली, देखो सांस पूरी ली, ठीक है, अब पूरी छोड़ दी और छोड़ दी, इस पॉइंट से ईआर भी भरा, टी भी भरा, आईआर भी भर गया। तो ये जो कॉलम है ईआरवी, टीवी और आईआरवी का, ये हमारी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, इसमें हमने आरवी नहीं जोड़ा, जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा। ऐसा है, तो हमारे पास क्या हो गया, टीबी, आईआरवी, ईआरवी। टीबी और आईआरवी जोड़ दो तो आईसी, टीबी और ईआरवी जोड़ दो तो ईसी, और आईआरवी, टीबी और ईआरवी जोड़ दो तो वीसी। अगर वीसी प्लस आरवी कर दो तो टीएलसी, अगर ईआरवी प्लस आरवी कर दो तो एफआरसी। ठीक, ओके, तो ये भाई है। अब मुझे बताओ कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन किन बातों पर निर्भर करता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैबिटेट पे डिपेंड करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, alveoli are the primary site of exchange of gases। प्राइमरी साइट है मतलब कोई सेकेंडरी साइट भी होता है क्या? नहीं, तो हम ये कहेंगे कि ब्रीदिंग के पूरे प्रोसीजर में जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अनलोड होती है, उस एक्सचेंज को हम प्राइमरी कहते हैं और वो एक्सचेंज एल्वियोली में होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एल्वियोली आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ exchange of gases। This is a very good point। The primary site of exchange of gases means the site where actually oxygen joins the blood and carbon dioxide leaves the blood। That site of exchange of gas is primary site। And what is the secondary site? Secondary site is just opposite to it। What? When the carbon dioxide leaves tissue and joins blood and oxygen leaves blood and joins tissue, that is secondary site। So primary site of exchange of gases is alveoli and secondary site of exchange of gases we can say is tissue। Okay, so next line it is given in NCERT that exchange of gases also occur between blood and tissues।
Firstly, they are saying that primary site of exchange of gases are alveoli. Then they are saying the exchange of gases also occurs. It means it is secondary site. We can say this in order to understand the primary and secondary. Okay. Now, what is the basic principle through which this process will take place? It is simple diffusion. And we all know that simple diffusion means what? Simple diffusion is the movement of any particle, electron, proton, neutron, atom, molecule, substance, gases, liquid, okay, soluble particles from their higher to lower concentration. Okay, and now actually we are talking about gases, then we will consider not concentration but the pressure. Partial pressure. Yes, partial pressure. Solubility of gases as well as the thickness of membrane involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. Mean to say, are also some important factors. Also some important factor बोला है, यानी कि मेन फैक्टर कौन सा है? मेनली बेस्ड ऑन, क्या गजब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, मेनली बेस्ड ऑन भी लिखा हुआ है, बाद में लिखा है ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, यानी क्लियर कट बता दिया है कि अगर आपको चुनना पड़े, अगर सारे ही आ जाएं ऑप्शन में तो आप क्या करोगे? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे बाद में डिपेंड करता है, पहले डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कितनी थिक है मेम्ब्रेन और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कितना है, जो भी मीडियम इधर है और या जो भी मीडियम उधर है, ठीक है, वो उसमें कितनी सॉल्युबल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर है ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में वो काफी ज्यादा है। और मैं चाहूंगा, पर मैं जो डेप्थ वाला कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ वो तुम समझ लो। डेप्थ वाला कंसेप्ट क्या है कि अभी हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे। जब हम पार्शियल प्रेशर देखते हैं तो पार्शियल प्रेशर के बीच में डिफरेंस कितना है देख लो जरा, 40 45 104 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, एल्वियोली में 104 है, तो ब्लड में कितनी आ गई? 95 आ गई, चलो मान लिया। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, फिर भी हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अनलोड हो गई, बहुत ज्यादा अनलोड हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो चीज जितना ज्यादा सॉल्युबल होती है, ठीक है, पर यूनिट पार्शियल प्रेशर उसका ज्यादा डिफ्यूजन हो पाता है। जो चीज डिसॉल्व ही नहीं है उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज में या एल्वियोली से ऑक्सीजन ब्लड में, एल्वियोली से ब्लड में जाती है तो वहां पर सॉल्युबल है ही नहीं, तो वहां रुक ही नहीं पाती, वहां पर जाएगी ही नहीं, प्लाज्मा के अंदर जाएगी ही नहीं। कहाँ जाएगी? हीमोग्लोबिन पे जाएगी, और हीमोग्लोबिन से उतरेगी तो कहाँ जाएगी? टिश्यूज में चली जाएगी। लेकिन प्लाज्मा में रहती है क्या? नहीं, प्लाज्मा में केवल 3% ऑक्सीजन रहती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में ब्लड के अंदर बहुत कम है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है, इसलिए 45 एक तरफ है, 40 दूसरी तरफ है। ग्रेडियंट का वो देख लो, 64 है ना, 64 104 माइनस 40 तरफ 64 mmHg का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है, और एक तरफ 5 का है बेटा, 5 का। उसके बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से बेहतर तरीके से डिफ्यूज कर जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो और वो कितनी है, कितनी डिसॉल्व है, वो कितनी होती है डिसॉल्व? 23%। कहाँ 3% और कहाँ 23%? तो 23% सॉल्युबिलिटी में डिसॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में होता है, ठीक है ना। ओके, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, हाँ सर, वो ऑक्सीजन 97% आरबीसी से हीमोग्लोबिन से जाती है, 3% उससे जाती है, याद है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सिंपल हमें देख लेना है, सारा पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे होगा। ये देख लो, ये वाला डायग्राम देखो, जो हमने इनहेल किया, इनहेल एयर में जो वो है ऑक्सीजन है वो 140 के करीबन होती है, 139 140, तो वो 104 में आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड 40 से ऊपर कितनी होती है? 0.3, तो 40 से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो ऑक्सीजन 40 है, तो 104 से 40 की तरफ आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 45 है नीचे, यही वाला ब्लड ग्रुप क्या है? ये
ये वाला जी ब्लड सर। है, तो 45 से कहाँ जाएगा, 40 की तरफ। जी ठीक है, इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है और ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होगा, हाँ। ऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी आर्टरी में कैसा जी ब्लड सर। होगा, डीऑक्सीजनेटेड। हम्म, अच्छा, पल्मोनरी वेन से फिर क्या, राइट ऑरिकल में, राइट वेंट्रिकल में, वहां से डोर्सल एओर्टा सिस्टमिक एओर्टा फॉर्म करता है। आफ्टर दैट सिस्टमिक एओर्टा एक्चुअली डिसेंड डाउन टुवर्ड्स द एब्डोमिनल रीजन एंड give rise to abdominal aorta, and abdominal aorta in turn give rise to number of arteries carrying oxygenated blood, and these number of arteries are known as systemic arteries, and this जी सर। circulation is known as systemic circulation. हम्म, Now this oxygenated blood is going towards tissues, and they are bound in the capillaries, and capillaries are invading the tissues, and tissues are full of carbon dioxide. They are always प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते ही रहते हैं। और बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना मेटाबॉलिज्म का लक्षण है। जी सर। कोई चीज जिंदा हो, यहाँ एक्सचेंज हो गया। अब क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो अच्छी खासी स्टेबल बाउंड है हीमोग्लोबिन से, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ऐसा क्या हो जाता है कि उस ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन को छोड़ना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लीव करना होता है और उसको ज्वाइन कर लेना होता है टिश्यू को। और ऐसा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर ज्यादा है, अब वो वहां पर लोड हो जाती है। मैं दोनों का ही आपको रीजन पार्शियल प्रेशर बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ पार्शियल प्रेशर की वजह से होता है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि जब हीमोग्लोबिन में बाइंड है ऑक्सीजन, उसे कोई समस्या नहीं है, तो आखिर कौन सी चीज, बेटा पार्शियल प्रेशर सुनो मेरी बात, 4 से 40 में वो आता है ना, तो वो प्लाज्मा में नहीं रुकता, वो हीमोग्लोबिन में चला जाता है। हीमोग्लोबिन में जाते ही अब वो डिसॉल्व तो रह नहीं गया, ठीक है, तो अब वो फिर से पार्शियल प्रेशर आप कब काउंट करोगे, जब किसी चीज की वजह से, वो जो किसी चीज है, वो जो फिनोमिना है, वो जो प्रिंसिपल है, उसका नाम अभी हम डिस्कस करेंगे। वो जो प्रिंसिपल है, वो जो फिनोमिना है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन से जो बाइंड ऑक्सीजन है उसको हीमोग्लोबिन छोड़ना पड़ेगा और डिसॉल्व फॉर्म में आना पड़ेगा। तब हम कहेंगे कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 95 है और टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर 40 है, तो 95 से 40 में जाएगा। अब जाएगा, बीच में कहीं नहीं, एल्वियोली से लेकर टिश्यूज के बीच में कहीं पर भी वो खुला नहीं है, ठीक है। अब हम ले आते हैं अपने उस इफेक्ट को जिसका नाम है बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। उस बोहर्स इफेक्ट की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली कॉज करता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को। और इस डिसोसिएशन को एक कर्व के फॉर्म में जब हम लगा लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। अच्छा सर, समझ गया। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व यहाँ से रिलेटेड है, इससे हाँ, बोर्ड से। यहाँ पर ये बात है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा, क्यों, क्योंकि बोर्स इफेक्ट होगा। बोर्स इफेक्ट क्यों होगा, की वजह से कार्बन छोड़ेगा, डाइऑक्साइड तो डिसॉल्व है ना, क्योंकि कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड तो डिसॉल्व है, उसे भी 23% डिसॉल्व में आना पड़ेगा। 23% डिसॉल्व होने की वजह से वहां पर 40 है और यहाँ पर 45 है। 45 जी वाला जब वहां पर जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जी बढ़ने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, जी एक हीमोग्लोबिन पे जो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बंधे हुए हैं, वो अनस्टेबलाइज होता है। इसी को हम कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। आई रिपीट, the destabilizing effect of increasing partial pressure of carbon dioxide on oxyhemoglobin complex is known as Bohr's effect.